Hello friends. You are watching my YouTube channel, that is Azhar Technical Zone. In this video, I am going to explain you about progress measurement sheet. What is progress measurement sheet? First of all, I would like to tell you, being a planning engineer, this is our main core responsibility to prepare the progress measurement sheet. So before moving to the video, we would also know what is PMS. What is progress measurement sheet? And second, we must know why PMS will be used and what is the purpose of this sheet and how to prepare this one. So in this video, I am going to discuss about these three questions. Let's see. The first thing, what is progress measurement sheet? Actually, the PMS is a progress measurement sheet which is used to track the progress, identifying the trends and evaluating the project task. And this is a most using project management tool in any project. It is used to evaluate and assess the project task, and it is also used to include in this sheet, as you can see on my screen, like task description, allotted weightage percentage and progress columns. Coming to the next question, why PMS will be used and what is the purpose? As I said and answered in first question, it is used to track the project, to control the project task, to monitoring the progress, to claim the progress against the actual work done and get money from the client. The whatever work you have completed at the site or the work which you have completed in the office, so that amount you are going to claim from the client by showing the percentage. So next we will see how to prepare PMS. To prepare this PMS, I will demonstrate to you. I have taken one sample of this PMS and I will show you how it will be used. You can see my screen. This is a sample of one project which I have taken here, and I will try to explain you in detail that how this PMS sheet will work. As you can see here on the header position, here at the left side on the header, here there will be a client logo, means your end user for whom we are working, and in center of the header there will be a project name. Here the project name which I have taken here, that is storage tank project, and the right side of the header there will be a contractor logo, and in center just below of the project name there will be a sheet name, that is progress measurement sheet, and this sheet is also called as WBS system. As you know, what is WBS? WBS stands on work breakdown structure. So as we can see here, this is the overall project, and if you see here in the yellow highlighted color, this is a general item A, and the item B is a construction, and further in construction you can see here B.1, B.2, from B.9 there are some descriptions. It means these are the tasks which I have break down in this way. If you see the C, the Bandwal protection, the D which you can see here, miscellaneous civil and structural works, and further here the breakdown D is classified into two categories, that is D.1 and D.2.
Coming to the third column, that is C. This is a contract amount in USD. As you can see here, the general items का जो अमाउंट है वो है 69,230. अगर आप जनरल आइटम्स के अंदर ब्रेकडाउन देखेंगे, जैसे कि जनरल आइटम्स, this has been classified and categorized into two types, that is a mobilization cost and demobilization cost. अगर हम दोनों को सम करेंगे तो जो आपकी टॉप की वैल्यू है ये दोनों सम होकर यहाँ पे शो करेगी 69,230. If we come to the construction, अगर हम कंस्ट्रक्शन में आएंगे, here construction also further classified into 9 categories from B.1 to B.9. So what is this? This is a bill of quantities against the each WBS. ये वैल्यू दिखाते हैं कि आपका ऑफशोर फॉर्मेलिटीज के लिए आपका कितना उसका प्राइस है, यहाँ पे ये दिखाई देगा. और ये जो प्राइस है ये ड्राइव होगी आपकी शेड्यूलिंग प्राइस जो आप एस्टिमेशन शीट बनाते हो. तो यहाँ पर हर एक WBS में यहाँ पे वैल्यू दी गई है और यहाँ पे ये सारी सम ऑफ दिस B.1 टू B.9 is equal to the 39 million, as you can see here. Sorry, 39,89,408 dollar. If we come to the C, here also we can see that for this line item Bandwal production there is a certain amount, and for D also it is same, and this D is breakdown into two categories. One is other miscellaneous civil works and second one is structural other metal works. If we come to this project overall, as we can see here, this is a sum of this all WBS, that is A, WBS A, WBS B, WBS C, D. This is a sum of these values. So as you can see here, this is like 1,08,37,685 USD, that is in terms of dollar. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जो आप क्लाइंट के पास से ये अमाउंट ओवरऑल क्लेम करेंगे, यानी ये आपकी जो वैल्यू है ये प्रोजेक्ट की कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू है. अभी देखते हैं कि ये WBS वेटेज क्या है. व्हाट इज दिस WBS वेटेज? एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, हियर आई हैव टेकन लेवल 1, level 2, level 3, level 4. What is this level 1, 2, 3 and 4? Actually ये एक WBS वेटेज है. वेटेज मीन्स जैसे कि आप देखते हो कि हर लाइन आइटम में एक एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यू है कि हम लोग अब इसके अंदर ये पता लगाएंगे कि हर एक लाइन आइटम में उसका एक वेटेज कितना है. सपोज कंसिडर अगर हम एक प्रोजेक्ट को एज ए 100% कंसिडर करेंगे तो अगर जनरल आइटम्स जब कंप्लीट होगा तो उसका वेटेज उस प्रोजेक्ट के अंदर कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं WBS वेटेज, और वी कैन ऑल्सो से दैट अलॉटेड वेटेज. एक्चुअली यहाँ पे जो WBS वेटेज को जो कैटेगराइज किया गया है वो कैटेगराइज किया गया है आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में. अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लेवल है ऑरेंज कलर का, जो मैं यहाँ पे अभी सारे जितने भी WBS थे मैंने इसको हाइड कर दिया है. यहाँ पे ग्रुपिंग है, मैंने इसको ग्रुपिंग किया है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट ओवरऑल की जो वैल्यू है वो 100% है, यानी जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से इसी वैल्यू को डिवाइड होगी. यानी अगर मुझे 100% निकालना है तो क्या करूँगा मैं, ये जो वैल्यू
जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करूंगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100% आ चुका है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो लेवल है इसका ये है लेवल 1, इसलिए ये कॉलम डी लेवल 1 में यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो। वेयरएज अगर आप देखोगे यहाँ पे लेवल 2, 3 एंड 4 में एंड 5 एंड 6 में कुछ नहीं है। जैसे इसको मैं ओपन करूंगा, फिर आप फर्दर दे सकते हो कि यहाँ पे मैं इसको हाइड कर रहा हूँ WBS को, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर यहाँ पे आप फर्दर देखोगे A, B, C, D, यानी हम लोग के पास जो WBS है यहाँ पे 4 WBS है, यानी ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे 4 WBS में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट ओवरऑल है ये लेवल 1 कैटेगरी में आता है। जैसे हम लोग लेवल 2 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेवल 2 में यहाँ पे कुछ परसेंटेज है, और ये परसेंटेज क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और ये कैलकुलेशन में किस तरह से फिट होता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये परसेंटेज आया है कहाँ से है, हम ये मालूम करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं फार्मूला बार में क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो लेवल 2 में जो जनरल आइटम्स की जो बिल ऑफ क्वांटिटी वैल्यू है, यानी जो C9 है, कॉलम C एंड रो नंबर 9, ये वैल्यू डिवाइड होगी आपकी प्रोजेक्ट ओवरऑल वैल्यू से। जब आप इसको डिवाइड करोगे मैक्सिमम वैल्यू से, आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से, तो आपका यहाँ पे एक परसेंटेज आएगा, दैट इज 0.64%, विच इज नथिंग बट कि आपका जो जनरल आइटम्स है आपका प्रोजेक्ट में वो 0.64% रोल प्ले कर रहा है। सेम अगर उसी तरह से अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन में आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो WBS का जो वेटेज है यहां पे शो कर रहा है 36.81। ये कैसे आया है? दिस वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी डिवाइडिंग बाय द ओवरऑल वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, और यू कैन से द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू बी क्लेम, इससे ये डिवाइड होगा। जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है, आपका जो वेटेज ले रहा है ओवरऑल प्रोजेक्ट में वो है 36.81। और इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन का जब कंप्लीट वर्क होगा तो आपका जो परसेंटेज आपको मिलेगा एक्चुअल प्रोग्रेस परसेंटेज ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर वो है 36.81%। फिर जैसा ही के अंदर यहाँ पे आप आइटम नंबर C में आएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर बंड वॉल प्रोटेक्शन। जैसे आप यहाँ पे बंड वॉल प्रोटेक्शन में आएंगे, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है एज पर दी शेड्यूल, प्राइसिंग शेड्यूल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो बंड वॉल प्रोटेक्शन है इसका जो वेटेज है ओवरऑल प्रोजेक्ट में वो है 57.83। यानी जब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर ये आइटम नंबर C कंप्लीट करेंगे तो आपको जो पैसा मिलेगा वो अराउंड $6267,124 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन D में, सॉरी आइटम नंबर D में देखेंगे हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या है, मिसलेनियस सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको जो पैसे जो आप अमाउंट जो क्लेम कर सकते हैं वो $511923 क्लेम कर सकते हैं, और उसका जो वेटेज है ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर वो है 4.72%। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो परसेंटेज है ये लेवल 2 कैटेगरी में आता है। अगर फर्दर हम लोग लेवल 3 में जाएंगे, अब हम लोग लेवल 3 में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हो लेवल 3 के अंदर ये जो मोबिलाइजेशन है A.1, दिस वन बिलोंग्स टू दी लेवल 3।
जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो ऑरेंज कलर का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट ओवरऑल है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं लेवल 1। देन उसका जो ब्रेकडाउन है, जो येलो कलर में जो हाईलाइटेड है ABCD, ये आपका होगा लेवल 2। देन ये लेवल 2 के अंदर जो फर्दर ब्रेकडाउन है उसको कंसिडर किया जाएगा एज ए लेवल 3। तो हम लोग को ये देखना है यहाँ पे कि लेवल 3 का ईच लाइन आइटम कितना वेटेज रखता है ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है। इसका जो मोबिलाइजेशन का जो पर्टिकुलर अमाउंट है, बिल ऑफ क्वांटिटी है, वो है $34,615 USD। ये जो है आपका डिवाइड होगा आपकी ओवरऑल वैल्यू से। तो ये आपको ये दिखाता है कि आपका जो मोबिलाइजेशन लाइन आइटम है उसका कितना वेटेज ये अलॉट करता है। अगर आप डीमोबिलाइजेशन का देखें तो जैसे कि यहाँ पे मोबिलाइजेशन और डीमोबिलाइजेशन का अमाउंट सेम है, तो ऑब्वियसली आपका परसेंटेज भी सेम आएगा। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो और एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो मैंने वेटेज निकाला है सही निकाला है या नहीं निकाला है। अगर दोनों को आप सम करेंगे, लेवल 3 के दोनों लाइन आइटम्स को आप सम करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 0.64 आ रहा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 2 में 0.64% है। फिर जैसे कि मैं आगे फर्दर जाऊं, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी सेम इसी तरह है 0.13%। अगर आप यहाँ पे B.2 में आएंगे, यहाँ पे B.2 में फर्दर दो और क्लासिफिकेशन है, यानी दो और वर्क ब्रेकडाउन में यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है। दिस विल बी कंसिडर एज ए लेवल 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये लाइन आइटम का, ड्राइंग प्रिपरेशन सबमिशन एंड अप्रूवल का, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय द प्रोजेक्ट ओवरऑल। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको लेवल 4 का वेटेज अलॉटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। देखें, हर एक क्लाइंट वो चाहता है कि आपका जो अगेंस्ट द ईच लाइन आइटम अगेंस्ट द 100% वो कितना वेटेज रखता है। तो उसके लिए हम लोग को ये रिमूव करना होता है और हम लोग को ट्रैकिंग के लिए भी आसानी होती है। इसलिए हम लोग अलॉटेड वेटेज कैलकुलेशन करते हैं अपनी प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लेवल 3 यहाँ पे वेटेजेस निकालेंगे एंड लेवल 4 परसेंटेज निकालेंगे। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। जैसे कि यहाँ पे कॉलम हैश देखेंगे, यहाँ पे लेवल 5 एंड लेवल 5 to 6 इफ एनी। जैसे कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, जो मैंने यहाँ पे एक सैम्पलिंग के लिए लिया है, स्टोरेज टैंक प्रोजेक्ट, ये अप टू द लेवल 4 है। फिर फर्दर अगर आपके फर्दर ब्रेकडाउन है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, तो आप लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे कॉलम्स और यहाँ पे आप ऐड करते रहेंगे। तो अभी हम आते हैं अपने प्रीवियस, करंट एंड क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रीवियस मीनिंग क्या होता है कि आपने आपके प्रीवियस मंथ में आपने कितना प्रोग्रेस क्लेम किया है। ओके, और एक करंट मीनिंग ये होता है कि आपने इस मंथ में कितना प्रोग्रेस अचीव किया है। और ये क्यूमुलेटिव क्या होता है कि ये दिस विल बी ए सम ऑफ द प्रीवियस एंड करंट, यानी पिछले महीने तक आपने कितना प्रोग्रेस क्लेम किया था और इस महीना आप कितना प्रोग्रेस अचीव कर रहे हो, यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव वैल्यू दिखाई देगी। ओके, अगर अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन जाएंगे आप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस लगा के रखा है। दिस WBS विल बी ए सम ऑफ दिस बोथ एक्टिविटीज। ओके, अगर अब यहाँ पे देखोगे सारे कॉलम्स में यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा के रखा है। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें
उनके अगर जो भी इंटरेस्टेड है मैं उनके साथ उनके मेल आईडी पे ये मेरी जो फाइल है मैं उनको शेयर करूँगा फॉर योर वर्किंग रेफरेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं और मॉनिटर करते हैं और किस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं मोबिलाइजेशन के अंदर, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी फॉर्मूला है वहाँ पे आप मैनुअल वैल्यू एंट्री नहीं कर सकते। जहाँ पे फॉर्मूला नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे आप वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, सपोज समझिए कि आज मैं फर्स्ट पेमेंट सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ प्रोग्रेस जनवरी 23। तो मैं जो बना रहा हूँ ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट, और या आप उसको सिस्टम भी कह सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट शीट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लेम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रीवियस में कुछ डाटा यहाँ पे नहीं रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसी तरह से 3 मंथ्स का आप किस तरह से बना सकते हो प्रोग्रेस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी फर्स्ट मंथ का प्रोग्रेस बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मोबिलाइजेशन, मैंने बंदों को मेरा जो मैन पावर है, जो रिसोर्सेस है, मैंने इसको मोबिलाइज किया है। तो यहाँ पे मैं क्लेम करूँगा 100%। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं 100% मैंने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंजेस आ गए। जैसे यहाँ पे मैंने 100% क्लेम किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है, दिस 100% विल बी मल्टीप्लाइंग विद दिस मोबिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100% मोबिलाइज कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इतना पैसा क्लेम कर सकता हूँ। यानी ये जो यहाँ पे अमाउंट है मोबिलाइजेशन की, मैं इतना अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इनिशियली मोबिलाइज किया है, और हम लोग का डीमोबिलाइजेशन वो लास्ट में होगा। यानी आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद, सपोज अगर आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, इफ देर इज a 1 year of project, then you are going to claim this demobilization amount at the end of your project only, when you are going to demobilize your resources और मैन पावर। तो यहाँ पे हम लोग डिमोबिलाइजेशन को क्लेम नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा कि हम लोग ने ऑलरेडी मोबिलाइजेशन कर चुका है और कंस्ट्रक्शन के कुछ काम भी हम लोग ने स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफशोर फॉर्मेलिटीज ट्रेनिंग एक्सेट्रा। यानी ऑफशोर फॉर्मेलिटीज मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ऑफशोर प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर बहुत सारे अंदर ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे कि HSC ट्रेनिंग होती है, सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, और तो वेलफेयर ट्रेनिंग्स होते हैं वहाँ पे। और जैसे कि ऑफशोर में जब काम करते हो तो वहाँ पे स्काबा बोल के एक सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपैरेटस ट्रेनिंग होती है। यानी बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑफशोर फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ परसेंटेज क्लेम करेंगे। सपोज हम लोग का, अगर हम लोग ने 100 बंदों को वहाँ पर अगर भेजा है, 100 मैन पावर हम लोग के पास है, 100 में से हम लोग ने 100 बंदों को हम लोग ने भेजा है, और 50% नंबर्स क्वांटिटी बंदों का अगर वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 50% क्लेम करेंगे। और जैसे यहाँ पे 50% हम लोग ने क्लेम किया, तो यहाँ पे आप चेंजेस यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 50% किया, तो यहाँ पे करंट में देखिए आप 50% आ चुका है। ये कैसे आया है, क्योंकि हम लोग ने जो यहाँ पे वैल्यू जो अपडेट कर रहे हैं वो क्यूमुलेटिव में कर रहे हैं। तो आपका जो करंट मंथ का जो आएगा प्रोग्रेस, दिस विल बी ए डिफरेंस बिटवीन दिस क्यूमुलेटिव एंड प्रीवियस डाटा। जैसे कि प्रीवियस आपका 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 50% ही आएगा, जो यहाँ पे 50% है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे करंट मंथ की वैल्यू, सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन दिस क्यूमुलेटिव अमाउंट एंड प्रीवियस अमाउंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में यहाँ पे फार्मूला है, तो यहाँ पे हम अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स प्रिपरेशन सबमिशन एंड अप्रूवल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
सपोज आपका हुआ है 5%, तो आप उसको यहाँ पे 5% क्लेम करें। जैसे यहाँ पे आप 5% क्लेम किए हो, यानी आपका 5% प्रोग्रेस हो चुका है। ये आप इंजीनियरिंग का, आप अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पूछें कि हम लोग ने कितना अचीव किया है, तो 5% जैसे आपको मिलेगा, तो 5% यहाँ पे हम लोग क्लेम करेंगे। और जनरल डॉक्यूमेंट्स, यानी बहुत सारे आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपका HSC प्लान होता है, JSA प्लान होता है, और आपका ITP प्लान होता है। बहुत सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जैसे कि मेथड स्टेटमेंट होता है, एग्जीक्यूशन प्लान होता है, और बहुत सारी चीज़ों के प्रोसीजर्स होते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट दी सो एंड सो एक्टिविटी एंड टास्क। तो वो सारे जो आते हैं वो जनरल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। तो वो कितना आपने प्रोग्रेस किया है, ये आपको प्रोजेक्ट टीम से मिल जाएगा डाटा। ये आप 10% मैं डाल देता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग का इतना काम हुआ है। फिर जैसे कि यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, तो आप यहाँ पे मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क है, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर है, कोई सिविल है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को आपने दिया है, तो जो भी वो लोग प्रोग्रेस करेगा, तो आप उनसे सब कॉन्ट्रैक्टर से, इंजीनियर से आप प्रोग्रेस लेंगे और यहाँ पे आप उसको अपडेट करेंगे। सपोज समझिए आप यहाँ पे आपका 2% कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2% लेता हूँ। और आपका जो प्रोक्यूरमेंट पार्ट है, जो आपकी ख़रीद फरोख्त है, आपकी प्रोक्यूरमेंट यानी परचेसिंग आइटम्स आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, सपोज 15%। जैसे कि यहाँ पे मैं 15% करूँगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे $2,43,816 हम लोग ने क्लेम कर चुका है। ये जो 2,43,000 है, ये अगेंस्ट 16,25,000 के अगेंस्ट वैल्यू में हम लोग इतना भी क्लेम करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो काम जो हुआ है, प्रोग्रेस जो हुआ है, वो 15% है। आपको मैं बताता चलूँ, ये जो हम लोग प्रोग्रेस जो अपडेट कर रहे हैं, इसका कोई कुछ बेसिस होता है कि जैसे कि आप प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एक कॉलम देख सकते हो, कॉलम नंबर O। मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि बेसिस ऑफ मेजरमेंट फॉर इंडिविजुअल डिसिप्लिन और एक्टिविटी, यानी हाउ वी आर गोइंग टू क्लेम दिस परसेंटेज। तो ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आप सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क अगर कोई परसेंटेज अगर आप क्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप किस बेस पे आप क्लेम कर रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दी साइट प्रोग्रेस। अगर यहाँ पे आप प्रोक्यूरमेंट अगर क्लेम कर रहे हो, तो किसके बेस पे कर रहे हो, ये आप प्रोक्यूरमेंट शीट, यानी जो भी आप प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, तो प्रोक्यूरमेंट के अंडर आप जितना परसेंटेज क्लेम कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो, तो वो जो है प्रोक्यूरमेंट शीट के अंदर परसेंटेज होता है, जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है। मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोक्यूरमेंट शीट किस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग जो रेफर करते हैं वो प्रोक्यूरमेंट शीट रेफर करते हैं, तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे 15% क्लेम कर रहे हैं। फिर जैसे कि हम लोग प्री फैब्रिकेशन में जाएंगे, तो फिर यहाँ पे 5% करेंगे। तो यहाँ पे जो प्री फैब्रिकेशन है, इसका बेसिस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग के पास फैब्रिकेशन प्रोग्रेस शीट होती है, जो हम लोग मेंटेन करते हैं कि आपका कितना फैब्रिकेशन आपका हुआ है, कितना वेल्डिंग हुआ है, कितना एनडीटी हुआ है, कितना हाइड्रो टेस्ट हुआ है। तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं, वो शीट जिसको हम लोग कहते हैं फैब्रिकेशन प्रोग्रेस शीट। तो इस तरह से हम लोग क्लेम करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए आप, तो इस मंथ में हम लोग कितना क्लेम करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वी आर गोइंग टू क्लेम 3,26,867। यहाँ पे मैं एक परसेंटेज डाल देता हूँ कि हम लोग ओवरऑल परसेंटेज कितना क्लेम कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे ये परसेंटेज लाना है, मेरा अर्नड वैल्यू यानी जो मेरी वैल्यू आई है वो 3,26,000, इट विल बी डिवाइडेड बाय दी दिस टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जनवरी मंथ में मैंने 3.02% अचीव कर चुका हूँ। अगर सपोज
समझिए कि अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में चले गए हैं, यानी अब हम लोग नेक्स्ट मंथ फरवरी में कुछ प्रोग्रेस क्लेम करने वाले हैं। तो जब आप फरवरी का जब आप क्लेम करोगे तो आप क्या करोगे, सिंपली ये जो डाटा आपका क्यूमुलेटिव में आया है, ये इस कॉलम को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे आप सिंपली जस्ट पेस्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे। अगर आप पेस्ट भी करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, जो हम लोग नहीं चाहते। जस्ट हम लोग को यहाँ पे वैल्यू में रखना है पेस्ट। जैसे यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट कॉलम में आपका जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीटली जीरो दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ जो मैंने क्लेम किया था जनवरी में, वो किया था 3.02%। यानी जो हम लोग ने क्लाइंट से जो पैसा लिया था वो लिया था 3,26,867। तो अभी हम लोग को फरवरी का प्रोग्रेस अपडेट करना है, तो चलिए अपडेट करते हैं। अभी हम लोग फरवरी में है, तो समझिए लास्ट मंथ कितना था, 50 था। तो अभी मैं इसको ले लेता हूँ 60%। फिर 60% लेता हूँ। फिर यहाँ पे फर्दर में आगे बढ़ता हूँ ड्राइंग्स के अंदर। जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग्स में देख सकते हो कि लास्ट मंथ जो मैंने क्लेम किया था वो 5% क्लेम किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिपरेशन के अंदर। अभी मैं क्लेम करूंगा, यानी जनवरी से लेकर फरवरी, यानी 1 मंथ का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इन फरवरी के 28 डेज में मेरा जो प्रोग्रेस जो अचीव हुआ है वो 20% अचीव हुआ है, और जो मेरा जनरल डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन एंड सबमिशन है वो मेरा 30% हुआ है। Let me remind you, we are updating the progress of the month of February। और यहाँ पे सबकॉन्ट्रैक्टिंग वर्क जो है यहाँ पे मेरा अभी 14% हो चुका है, और प्रोक्योरमेंट जो है ऑलमोस्ट 35% हो चुका है, और जो मेरा फैब्रिकेशन वर्क है वो हो चुका है मेरा 15%, जो कि पहले 5% था। अगर यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे, यानी ये डिफरेंस रहेगा आपका 15% माइनस 5%, जो आपका 10% प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पाइपिंग एंड मैकेनिकल लास्ट मंथ में यहाँ पे 0 था, कुछ नहीं था। तो अभी हम इस मंथ में क्लेम करने वाले हैं, हम लोग का 5% हुआ है। जैसे कि पाइपिंग एंड मैकेनिकल है, ये साइट एक्टिविटी है। यहाँ पे आप ले सकते हो साइट प्रोग्रेस, यानी आप जो क्लेम कर रहे हो तो किस बेस पे क्लेम कर रहे हो। यानी मैं साइट प्रोग्रेस का जो परसेंटेज है उसके बेस पे मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ। ओके, अगर जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ओवरऑल में देखेंगे, लास्ट मंथ में हम लोग ने 3.02% क्लेम किया था, और हम लोग का जो टोटल परसेंटेज है यानी अर्न्ड वैल्यू है, जिसको हम लोग ईवी भी कहते हैं, और इस डाटा को मेंटेन करने को हम लोग अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट भी कहते हैं। जैसे कि देखें आप यहाँ पे, यानी मेरा मंथ ऑफ फरवरी का जो मेरा क्लेम है वो है 4.46%। यानी मैं इस मंथ में जो क्लेम करने वाला हूँ, जो लास्ट मंथ में क्लेम किया था 3.26 यानी 3,26,000 किया था, और मैं इस मंथ क्लेम करने वाला हूँ 4.83। यानी अगर मैं दोनों को अगर सम करूँगा, यानी जनवरी और फरवरी का मिला के अगर मैं प्रोग्रेस देखूँगा तो मेरा हुआ है 8,10,000। यानी जो मेरा परसेंटेज जो अचीव हुआ है ओवरऑल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट 7.48%, और इस 7.48% को हम लोग कहते हैं ओवरऑल परसेंटेज। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते हैं किसी भी क्लाइंट को। अगर हम लोग जो भी एक्चुअल प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ है, अगर हम लोग को पैसा चाहिए क्लाइंट से, तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करके क्लाइंट को सबमिट करते हैं विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी यहाँ पे आप कॉलम ओ में जो भी आप बेसिस ऑफ मेजरमेंट फॉर इंडिविजुअल डिसिप्लिन एंड एक्टिविटी जो कॉलम है, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे मेंशन करे हो तो आपको एज ए बैकअप यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप प्रोक्योरमेंट लगा रहे हो तो आपको प्रोक्योरमेंट शीट के साथ में आपके अनप्राइस पीओस यानी परचेस ऑर्डर्स यहाँ पे आपको अटैच करने होंगे, जो आपने सप्लायर्स को इश्यू किया है मटेरियल को डिलीवर करने
करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर यार्ड में। तो उसी तरह से यहाँ पे प्री फैब्रिकेशन है, यानी अगर आप फैब्रिकेशन कर रहे हो तो फैब्रिकेशन स्टेटस और उसके साथ में फोटोग्राफ्स हो, या फिर आपका जो भी डिलीवरी अगर आप साइट पे कर रहे हैं तो डिलीवरी नोट्स यहाँ पे आप उसको एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। एंड अगर साइट प्रोग्रेस है, जो भी आपका साइट प्रोग्रेस हुआ है, जो एक्चुअल प्रोग्रेस है, तो आपके जो आप डीपीआर भेजते हो क्लाइंट को, तो एज ए डीपीआर पे आप साइट कंसल्टेंट का या साइट मैनेजर का साइन ले क्लाइंट से और उसको एज ए बैकअप डॉक्यूमेंट्स इसको आप यूज़ कर सकते हो क्लेमिंग के लिए। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर किसी को अगर समझ नहीं आया तो आप जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं अपना मेल आईडी भी ड्रॉप करूँगा, तो मेरी मेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर कोई इंटरेस्टेड है कि ये शीट अगर किसी को चाहिए फॉर द रेफरेंस, सो यू कैन रिक्वेस्ट मी, सो आई कैन सेंड यू बाय मेल। थैंक यू। और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे प्रोजेक्ट के। टिल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।